Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So we are starting lecture number 4 of electrical machines following the book Stephen J. Chapman, edition 4th. I am Naya Pervez. So the topic which we are covering today is magnetic behavior of ferromagnetic materials. What kind of energy losses could occur in a ferromagnetic core? The Faraday's law, the Lenz's law, the flux linkage in a coil, and what would be the eddy currents and how they would contribute to a certain losses in a magnetic field. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है जो हमने कवर अप करने हैं. So first of all, we would see what would be the behavior of any ferromagnetic material. So I have already given you a task that you have to find a differentiation between a paramagnetic, diamagnetic, and ferromagnetic materials. I hope so. It would be clear to you. So now we are utilizing ferromagnetic materials, and we would discuss how they would behave magnetically. Keep in mind, the ferromagnetic materials are those materials which have very high permeability, relatively 2000 to 6000 times more than that of any paramagnetic material. So what we say that the permeability can be constant in a free space, and it has a value of mu naught, which is 4 pi into 10 raised to power minus 7. But that wouldn't be constant in any ferromagnetic material. Depending on which type of material we are using, that permeability would be changed. So what we are doing in this topic, we would discuss that we would take any ferromagnetic material and we are taking any rectangular core of a ferromagnetic material. What we are doing, we are wrapping a certain coil which has n number of turns in it around one leg of the core that we already discussed. The core would have a mean path length LC and the cross-sectional area would be A. You would know that we have already discussed all these things. When we apply a small amount of current I across this coil, what would happen? A certain amount of flux would be passing through the core. Knowing that Ampere's law, knowing that it is following Ampere's law, which states that whenever we have a current carrying conductor, it would produce a magnetic field around it. So what we are doing now, we are observing the behavior of the current, that when we apply a certain amount of current across any core, how it would behave. So we are applying a constant current from 0 ampere, and we are increasing it to a maximum value, maximum permissible current that a core could withstand. उतना हम current इसके cross के कर रहे हैं, apply करें. Keeping in mind, this time the current that we are applying is a DC current, and the DC current is that which has a single direction, that they are unidirectional, means it would be only positive side or a negative side. It both have positive and the negative side. It is different from the AC current, which are the alternating current. Alternating current कौन से currents होते हैं which have both sides, positive side and negative side as well. Let me share you. So this is alternating current, which is alternating between the positive and the negative peak. Okay? So first, in the first behavior, we are applying a certain DC current across the core, and we are increasing its value from 0 to the maximum, and we would see that how it would behave. So the curve that it would follow, it is called the magnetization curve or the saturation curve. So what we're doing, on the x-axis we have F, which is magnetomotive force, and it has a unit of amperes turns. Keep it in mind that F is equals to Ni. And on the y-axis, what we could have, it is phi, which could be measured in Weber. So हम क्या कर रहे हैं? Now we are applying a certain magnetomotive force across the coil, and we are saying कि what would be the amount of flux that would be produced in this core. So when we are increasing the current from 0 to a maximum current, see इसी same pattern में the flux is going to be increased. So it is following a certain linear path up to a certain point. Linear means by increasing a one quantity, the other quantity follows the same behavior. Means अगर हम F को magnetomotive force को increase कर रहे हैं, F in turns is Ni. So if you are increasing the I, n number of turns is constant, it means F is going to be increased. और F को increase करने से the flux is going to be increased.
So it would follow a certain linear path until this point. This point is called as the knee point. ठीक है, अब आप यहाँ तक देखें, knee point से पीछे पीछे the behavior is quite linear, that we are increasing the F and the flux is going to be increased. After the knee point, what it is happening, the curve is going to be flattened. It is going to be constant. So this is called the saturation region. So we have three regions. Linear regions जिसमें F को इंक्रीज करने से हमारे पास phi इंक्रीज हो रहा है. नी पॉइंट हमारे पास वो रीजन है जिससे बिलो हमारे पास लीनियर बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा था, और जिस पॉइंट से अबव हमारे पास क्या हो रही है, सेचुरेशन रीजन है. सेचुरेशन रीजन का मतलब ये द कोर इज गोइंग टू बी सेचुरेटेड नाउ, कि हम फ्लक्स एफ को तो इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन फ्लक्स हमारे पास अब कांस्टेंट होता जा रहा है. ठीक है, सो अभी तक आपने इस स्लाइड तक ये रिस्ट्रिक्ट रखना है कि जब हम डीसी करंट अप्लाई करें अक्रॉस द कोर तो हमारे पास तीन रीजन्स यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं. वन इज द लीनियर रीजन, अदर इज द नी पॉइंट एंड अदर वन इज द सैचुरेशन पॉइंट. एंड नाउ वी वुड सी कि हमारे पास लीनियर बिहेवियर कब आता है, नी पॉइंट कब आता है और सैचुरेशन हमारे पास कब आ रही है. सो द मैग्नेटाइजेशन कर्व हैज थ्री रीजन्स. The first one is linear region, ठीक है, which is highlighted. The second one is the knee point, and the third one is called as the saturation region. Because we know that H is Ni by Lc, so we can say that H is directly proportional to Ni, means that magnetic intensity is directly proportional to the magnetomotive force. And we also know that the flux is equals to Bi, and we can say that the flux B is directly proportional to phi. It means that if we have a curve which is between F and phi, so because F is proportional to H, Ni हमारे पास F ही है, so F is proportional to H. So if you are taking F on the horizontal side, इसी तरह से हम horizontal axis पे H को भी consider कर सकते हैं. Similarly, vertical axis पे हमारे पास क्या, we have phi, because flux is directly proportional to B, or B is directly proportional to phi. So similarly, we can take this B on the vertical axis as we have taken the phi on the vertical axis. So same curve could be plotted between F and phi, and the same curve can be plotted between H and B. So because we can say that the relationship between B and H has the same shape as between flux and MMF. And why we are saying this, because ये हमारे पास more accurately जो वो predict करेगा behavior को understand करने में, कि अगर हम magnetic field intensity दे रहे हैं तो उसके accordingly हमारे पास flux density का क्या behavior आता है किसी भी magnetic material का. So this curve is called as the BH curve. ठीक है, BH curve इसलिए हम means हम F apply करें, it means we can take it as H. अगर हम F के apply करने से हमारे पास flux flow है, so we can also take it as B, which represents the flux density. और T हमने क्यों लिखा है, T is a unit of B, which is Tesla. So this is your class activity. I am leaving it up to you. You have to calculate the relative permeability in that case. So this is your homework assignment. You have to do it. So now we understand the BH curve. We just have an idea of BH curve. Now we are considering what should be the energy losses in any ferromagnetic core. See, so in the first discussion, what we apply a direct current across the core, and we see that it has following three regions: linear ones, knee point, and the saturation one. Okay. Now we are applying the same alternating current across this core. See, Ampere's law states that whenever we have a current carrying coil, it could produce a magnetic field around it. So that current could be direct current, DC current, and that current could be alternating current. Okay? In any case, it would produce magnetic field. So in case of direct current, the magnetic flux would be direct, means it would be unidirectional. In case of an alternating current, the resultant magnetic flux, the magnetic field that would produce would also be the alternating, means वो भी हमारे पास alternating ही होगी. अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इसको कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करें, सो द फिनोमेना वुड बी डिफरेंट. बिकॉज अल्टरनेटिंग जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ रीजन्स बन जाते हैं. आप यहाँ से देखें, 0 से लेके पीक वैल्यू तक हमारे पास करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इस पीक वैल्यू के बाद हमारे पास करंट डिक्रीज हो रहा है अप टू द पॉइंट 0. अब 0 पॉइंट के बाद ये अगेन हमारे पास जो है वो करंट इंक्रीज हो रहा है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन.
ठीक है, अप टू दिस पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद अगेन हमारे पास करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है बट इन द नेगेटिव साइड एंटिल इट कम्स टू जीरो, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक साइकिल को हम करें, ऑब्जर्व करें, तो इसमें क्या हो रहा है, 0 से 180 डिग्री तक हमारे पास पॉजिटिव पीक आ रही है, 180 से 360 डिग्री तक हमारे पास क्या हो रही है, नेगेटिव पीक आ रही है। एंड इन दिस पॉजिटिव पीक वी हैव टू फिनोमिना। देखिए में हमारे पास 0 से 90 तक करंट जो वो इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो अपेरेंटली वी वुड सी कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रहे हैं, सो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इट, सो मैग्नेटिक फील्ड शुड फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ ए करंट। मींस अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट दे रहे हैं, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जब हमारे पास करंट डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स को भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। एंड इसी तरह से जब हमारे पास फ्लक्स जीरो हो, करंट जीरो है, तो फ्लक्स को भी क्या होना चाहिए, जीरो हो रहा है। बट फिनोमेना वुड बी समहाउ डिफरेंट। Now we are saying that when the current is increasing from 0 to 1, ठीक है, अब इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, और इस अल्टरनेटिंग करंट के हमारे पास कुछ रीजन्स हमने क्या कर दिए, बना दिए। अब इसमें क्या रहा है, 0 से 1 की रीजन में देखिए तो हमारे पास कोर क्या हो रही है, सॉरी करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब करंट इंक्रीज हो रहा है मींस आई इज गोइंग टू बी इंक्रीज, सो इसके रिजल्टेंट में हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, सो जीरो के ये हमने वही कर्व प्लॉट की है, बी एच कर्व, ठीक है, बिटवीन एच एंड बी। कीप इट इन माइंड, एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल सी। तो अगर हम आई इंक्रीज करें तो एच भी हमारे पास, एल सी भी कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास आई के इंक्रीज होने से एच भी इंक्रीज होगा। मींस ये हमारे पास एम एम एफ की तरह बिहेव करे, और ये जो बी है वो रिजल्टेंट फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी है। अब जब हम 0 से 1 की रीजन में करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो 0 के 1 के रीजन में हमारे पास क्या होना चाहिए, करंट को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद 1 से 2 के रीजन में हमारे पास करंट इज अगेन इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अप टू अ सर्टेन पॉइंट हमारे पास जब लीनियर रीजन आएगा, उसके बाद द कोर इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड। ठीक है, हमारे पास जो है वो डिस्पाइट, अब हमारे पास इसमें करंट 1 से 2 के रीजन में करंट इंक्रीज भी हो रहा है, लेकिन 1 से 2 के रीजन में हमारे पास कोर क्या कर्व क्या हो रही है, फ्लैटन होना शुरू हो रही है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली हमारे पास कॉन्स्टेंट बिहेव कर रही है। सो इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ तक वही था जो हमने डीसी के केस में ऑब्जर्व किया था, ये हमारे पास एक लीनियर रीजन आएगा, एक हमारे पास नी पॉइंट है, और उसके बाद हमारे पास सैचुरेशन रीजन या सैचुरेशन पॉइंट है, विच इज दिस कुड बी से दैट द कोर इज सैचुरेटेड। अब कोर सैचुरेट होने का मतलब ये है कि इसके बाद अगर हम फ्लक्स इंक्रीज, सॉरी करंट इंक्रीज भी करेंगे, तो हमारे पास और फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स दैट अ कोर कैन एस्टैब्लिश। ठीक है, अब इसके बैक एंड पे हम देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट के बाद क्यों नहीं जो है वो करंट हम चाहे जितना मर्जी इंक्रीज करें, इसने इतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, कोर सैचुरेट हो गई है। ठीक है, तो ये जो रेड रीजन है ये आपका वही रीजन है जो हमने ऑलरेडी डीसी के केस में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आफ्टर ए सैचुरेशन पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है, अब 2.2 हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब 2 के बाद 2 to 2.3, अब आप करंट का बिहेवियर देखिए तो हमारे पास यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, अब डिक्रीज होना शुरू हो गया है अंटिल इट रीचेस द 0.3, जहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अपेरेंटली होना क्या चाहिए कि अगर जब हम करंट को इंक्रीज कर रहे थे तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब जब हम करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो इसके ऑटोमेटिकली जो इसके रिजल्टेंट में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। सो होना क्या चाहिए था कि 2 पॉइंट के बाद जैसे जैसे हमारे पास करंट डिक्रीज होना चाहिए, इस कर्व को भी हमारे पास पॉइंट किस पे आ जाना चाहिए था, जीरो पे। लेकिन इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक टू जीरो, ये हमारे पास जो है वो अप टू 0.3 पे आके कर्व जो है वो रुक गई है। मींस यहाँ पे 2 के बाद इसको जो है वो डायरेक्टली आना चाहिए था 0.0, लेकिन ये कौन सा पाथ फॉलो करिए, आपने पाथ ये देखना है। ठीक है, 0 1 2, 2 के बाद ये कहाँ पे आ गई है, 3 पे आके स्टॉप हो गई है। मतलब ये जीरो नहीं हुई, डिस्पाइट कि हमारे पास करंट क्या हो गया है, जीरो हो गया है, हमारे पास फ्लक्स जीरो नहीं हुआ। इट मीन्स दैट द कोर हैज सम फ्लक्स इनसाइड इन इट, जिसकी वजह से हमारे पास करंट को डिक्रीज करने से भी
फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, इट हैज अ सर्टेन फ्लक्स इन इट। जिस फ्लक्स को अब हम किसका नाम दे रहे हैं, बी आर का, दिस इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, इट मीन्स दैट द कोर हैज ऑलरेडी सम फ्लक्स प्रेजेंट इन इट which is called as the BR residual flux, that despite that we are going to decrease the amount of current, the core will retain certain amount of BR, a certain amount of the residual flux। ठीक हो गया, ये हमारे पास लॉसेस में एनर्जी लॉसेस में आता है एनी मैग्नेटिक मटेरियल की। इसको हम जो है वो इस लूप के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि व्हाई द कोर हैज अ रेजिडुअल फ्लक्स, और इस रेजिडुअल फ्लक्स को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। बट एट द पॉइंट हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, सो हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि फ्रॉम 2 to 3 रीजन हमारे पास करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स को भी जीरो होना चाहिए था, लेकिन फ्लक्स एक 3 पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया। इट मींस दैट इट हैज सर्टेन वी आर इन इट। अब हमने क्या करना है, हमें तो इस फ्लक्स को जीरो करना ही है। क्यों जीरो करना है, क्योंकि उसके बाद करंट जब नेगेटिव साइड पे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो इसी तरह से हमने क्या करना है, फ्लक्स को भी हमने क्या करना है, रिवर्स। क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो 3 पॉइंट के बाद अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो गई है। अब जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी है, इट मींस अब फ्लक्स भी हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइड पे हमारे पास आ जाएगा। सो ये 3 पॉइंट पे स्टॉप हो गया, वी हैव टू मेक इट टू जीरो। ठीक है, ये एच सी हमारे पास जो है वो पॉइंट है जहां पे हम फ्लक्स को डेलिबरेटली जीरो बना रहे हैं बाय अप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट। वो हम देखेंगे कि वो कौन सी एनर्जी है और वो हमें क्यों जरूरत पड़ती है, लेकिन अब हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक मिनट, मैं आपको इसी पॉइंट पे मैग्नेटोमोटिव मटेरियल को सर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा होता क्या है, इसी पॉइंट पे आके हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी हमारे पास कोई भी फेरोमैग्नेटिक कोर है, ठीक है। अब इस फेरोमैग्नेटिक कोर के अंदर आप देखें तो हमारे पास ये टाइनी रीजन्स बने हुए हैं, जिनमें से हर रीजन इज कॉल्ड एज अ डोमेन। ये भी एक डोमेन है, ये भी डोमेन है। ये ओवरऑल एक मेरे पास फेरोमैग्नेटिक कोर है, ठीक है। सो फेरोमैग्नेटिक कोर हैज अ सर्टेन मैग्नेटिक रीजन इन इट, जिनको हम मैग्नेटिक डोमेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर डोमेन की अपनी जो है वो डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या बता रही है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक कोर है, सो इट इज ऑलरेडी हैज अ मैग्नेट इन इट। ठीक है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो इट मींस इट हैज अ इट हैज मैग्नेटिक लाइंस इन इट। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही हैं बाय दिस वन। एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन सेम है, सो इसलिए ओवरऑल हम उस डोमेन को एक ही डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये डोमेन मेरे पास ये रिप्रेजेंट करिए कि इसके अंदर जितनी भी एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या है, राइट पे है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डॉट है, इट मींस ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द कोर है, जहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस हैं। इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी आउट ऑफ द कोर है, इसकी जो स्लाइटली कर्व्ड है ऑन द लेफ्ट साइड, ये स्लाइटली कर्व्ड है ऑन द राइट साइड। तो ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि जितनी भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड है और हर एक की अपनी डायरेक्शन है। इसलिए इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, बिकॉज ये सारे के सारे डोमेन्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, सो एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है, और नेट इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, जीरो आता है। इसलिए किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो है तो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है भी तो वो हमें अपरेंटली विजिबल नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे डोमेन्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, क्योंकि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर है किसी का इन द एब्सेंस ऑफ द करंट। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई। अब हम जब क्या करेंगे कि इसी मैग्नेटिक मटेरियल के अक्रॉस जब हम कोई करंट अप्लाई करेंगे, मींस हम उसको कोई इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी हम दे रहे हैं। ये कोर थी, वही फेरोमैग्नेटिक कोर जिसके क्रॉस हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ था, जिसका अपना बिहेवियर था। अब जब इसी कोर की एक लेग के ऊपर हम वाइंडिंग कर देंगे और उसमें से करंट को फ्लो कराएंगे, अब ये क्या करेगा कि ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ये लाइन अप हो जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। मतलब जो भी एक्सटर्नल फील्ड है, जो भी हमारे पास अप्लाइड करंट की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, सारे के सारे डोमेन्स अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देंगे।
ठीक है। अब नेट इफेक्ट इसका क्या होगा, अब हमारे पास एक ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड है विच हैज अ सर्टेन डायरेक्शन, जो कि हम अभी टुवर्ड्स राइट जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ए पार्ट में हमारे पास क्या था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई थी एक्सटर्नल, और हमारे पास नेट इफेक्ट क्या था, जीरो था, बिकॉज डोमेन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। इसमें क्या होगा, जब हमने करंट अप्लाई किया, अब आपको करंट वो डायरेक्शन कौन सी होगी, यू नो इट बाय द राइट हैंड रूल, कि अगर हमारे पास कर्व फिंगर्स जो हैं वो थंब की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही हैं, तो जो सॉरी हमारे पास अगर राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर जो है वो अप्लाइड करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, जो थंब है वो हमारे पास इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पे यही होगा कि इट मींस दैट कर्व्ड फिंगर्स की डायरेक्शन मेरे पास टुवर्ड माय एल्बो थी, जिसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी टुवर्ड्स राइट जो है वो मेरे पास लाइन अप हो गई है। ठीक हो गया, आप अपनी राइट हैंड लेके उससे इसको ऑब्जर्व भी करा सकते हो। सो इट मींस अब क्या हुआ कि करंट के अप्लाई करने से सारी की सारी मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द राइट जो है वो लाइन अप हो गई है। नाउ इट हैज अ सर्टेन नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसका इफेक्ट जो है वो हमें नजर आएगा। अच्छा, यहाँ तक ये वही पॉइंट था कि हमने क्या किया, करंट जब कोई भी नहीं था तो फ्लक्स जीरो था, जब हमने करंट को इंक्रीज करना शुरू किया तो हमारे पास क्या हो गया, सारी की सारी डोमेन्स जो है वो लाइन अप हो गई। ठीक है, अब जब डोमेन्स लाइन अप हो गई हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में, अब इसके बाद अगर हम नेट करंट को इंक्रीज करेंगे भी, तो क्योंकि सारी की सारी डोमेन्स लाइन अप हो गई हैं, तो इसलिए अब अगर फर्दर करंट को इंक्रीज करने से इन डोमेन्स की अलाइनमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this is the point we say that the core is now saturated, क्योंकि डोमेन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में लाइन अप हो गई हैं। अब हम फर्दर जितना भी इसको करंट को इंक्रीज करते रहे, इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी इंक्रीज करते रहे, कोर जो है हमारे पास सेचुरेट हो गई। ठीक है, सो दिस इज नाउ कि हमारे पास लीनियर रीजन से सेचुरेशन रीजन में कोर आ गई है। अब इट हैज अ सर्टेन विजिबल मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसमें फर्दर कोई भी इंक्रीज नहीं आएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास अप टू द पॉइंट 2 था कि द कोर इज सेचुरेटेड। अब हो क्या रहा है कि 2 पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो हम फ्लक्स करंट को ऐसा ऐसा कम कर रहे हैं। अब करंट को कम करने से होना क्या चाहिए था, फ्लक्स भी कम हो जाना चाहिए था। आफ्टर इट अपीयर्स द पॉइंट 3, जहां पे हमारे पास करंट जब जीरो हो गया तो फ्लक्स को भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अब जब डोमेन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में लाइन अप हो गई हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द करंट, अब जब हम उस करंट को रिमूव कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, अब होना क्या चाहिए, ठीक है, कि सारी की सारी जो डोमेन्स लाइन अप होंगी, जब हमने एक्सटर्नल एनर्जी रिमूव कर दी, तो इन डोमेन्स को क्या होना चाहिए, दोबारा रैंडमली ओरिएंट होना जो जाना चाहिए, दोबारा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि इनमें से कुछ डोमेन्स अपनी अलाइनमेंट को रिटेन रखती हैं इवन इफ द अप्लाई फोर्स इज रिमूव्ड। सो जिन डोमेन्स ने अपनी अलाइनमेंट को रिटेन रखा है, कुछ डोमेन्स तो उसी तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन कुछ डोमेन्स आल्दो की एक्सटर्नल एनर्जी को हमने रिमूव कर दिया, दे विल रिटेन देयर ओरिएंटेशन। इस वजह से द कोर हैज अ सर्टेन फ्लक्स रिमेन इनसाइड इन इट डिस्पाइट दैट वी हैव रिमूव्ड द एक्सटर्नल करंट। अब इस जो है, ये जो कोर ने अपनी डोमेन्स ने अपनी जो है वो कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन को रिटेन रखा हुआ है, इस वजह से कोर के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स प्रेजेंट होगा। दैट फ्लक्स इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल फ्लक्स। और इस रेजिडुअल का वैसे नाम ही है बचा बचा खुचा, ठीक है, बचत जाने वाला। और ये जो रेजिडुअल फ्लक्स है, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो बी है ये जीरो नहीं हो रहा, इट हैज अ सर्टेन फ्लक्स इन इट विच इज कॉल्ड एज द बी आर। ठीक हो गया। So the core retains certain flux inside in it, which is called as the residual flux. अब मैंने आपको बताया होगा कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेशन की बात कर रहे थे तो उसमें थोड़े बहुत एरर आ रहे थे, वो एरर हम कह रहे थे उसमें की भी था that it has a certain flux remain inside in it, that is called as a residual flux। ठीक है, कि हर कोर के अंदर कुछ ना कुछ ऑलरेडी फ्लक्स प्रेजेंट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक जब भी कभी हमने कोर को मैग्नेटाइज कर दिया तो कुछ ना कुछ डोमेन्स अपनी ओरिएंटेशन को रिटेन रखती है, इवन अप्लाई फोर्स को हम रिमूव भी कर दें, जिसकी वजह से हर मैग्नेटोमैटिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स होता है। एंड बिकॉज वी डोंट नो कि उसकी अमाउंट क्या है, इस वजह से भी जस्ट से कि इस वजह से हमारे पास कैलकुलेशन में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। बट कीप इट इन माइंड,
हर मैग्नेटिक फोर्स, हर मैग्नेटिक मटेरियल जिसको भी हमने कभी भी जो है मैग्नेटाइज किया हो, इट हैज अ सर्टेन फ्लक्स इनसाइड इट व्हिच इज कॉल्ड एज अ रेजिडुअल फ्लक्स। और ये रेजिडुअल फ्लक्स डिस्पाइट कि हम करंट जीरो भी कर चुके हैं, ये फ्लक्स हमारे पास कोर के अंदर रिटेन रहेगा। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, इट हैज रेजिडुअल फ्लक्स इन इट। लेकिन हमने तो क्या करना था, वी हैव टू मेक इट टू जीरो, वी हैव टू मेक बी जीरो, क्योंकि उसके बाद द करंट हैज टू बी इंक्रीज ऑन द ऑपोजिट साइड। मींस उसके बाद पोलैरिटीज अब क्या हो रही है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। ठीक है, अब जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो उसमें से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी फ्लक्स प्रेजेंट है, तो इस फ्लक्स को जीरो बनाने के लिए, इसको बी को 3 से 0 पे लाने के लिए, इस रेजिडुअल फ्लक्स को जीरो करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई अ सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स जो कि इस फ्लक्स को जीरो बना दे। ठीक है, सो अब ये डोमेन्स अलाइन हुई है। अब इनकी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी विच शुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ दिस अलाइन डोमेन्स। सो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमने फोर्स अप्लाई की थी, मतलब पहले जो हमने करंट अप्लाई किया था, अब उसके ऑपोजिट हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करनी है, जिसकी डायरेक्शन उसकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। उस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा कि डोमेन्स जो है वो दोबारा से रीअलाइन हो जाए। ठीक है, वो जो डोमेन्स अपनी एक डायरेक्शन सेट की हुई थी, एक उसमें एक सर्टेन डायरेक्शन अलाइन हुई थी, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो वो डोमेन्स अगेन क्या हो जाएंगी, रेंडमली ओरिएंट हो जाएंगे, दोबारा से वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी थ्रू आउट, ताकि हमारे पास कोर के अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं रहेगा। ये इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई हैमरिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जो है उसके क्रॉस हम हैमरिंग करें या उसके क्रॉस हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो उससे क्या होता है, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो इफेक्ट होता है। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक अप्लाई फोर्स करेंगे which should be opposite to the direction of the actual force, ताकि हमारे पास डोमेन्स जो है वो रीअलाइंड हो जाएं और हमारे पास जो इसके अंदर रेजिडुअल फ्लक्स उसका इफेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब वो जो एक्सटर्नल एनर्जी हम अप्लाई करें यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोहेर्सिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसको एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोहेर्सिव इसलिए क्योंकि ये इसके इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही अप्लाई करेंगे, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अप्लाइड एमएमएफ की ऑपोजिट डायरेक्शन ही है। तो यहाँ पे डेलिबरेटली हमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना पड़ी इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस फ्लक्स टू जीरो। वंस ये फ्लक्स हमारे पास जो है वो जीरो हो गया, उसके बाद वही फीचर आएगा कि 3 से 4 तक हमारे पास करंट नेगेटिव साइड पे डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास फ्लक्स भी क्या होगा, नेगेटिव साइड पे जो है वो डिक्रीज होगा, सॉरी नेगेटिव साइड पे इंक्रीज होगा अंटिल इट रीचेस द पॉइंट 4। 4 से 5 के दरमियान अगेन करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है द नेगेटिव साइड, तो 4 से 5 तक इसको अगेन करंट को क्या होना चाहिए, फ्लक्स को भी इंक्रीज होना चाहिए द नेगेटिव साइड अंटिल इट रीच द सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन जैसे ये सैचुरेशन पे जाएगा, उसके बाद 5 पॉइंट पे आके करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन ये अपना फ्लक्स जो है वो रिटेन रखेगा विच इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, so, इसको अगेन किस बार नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, सो अप टू 0.5 इसके अंदर सर्टेन फ्लक्स जो है ये बी आर अगेन रहना है। इसको जीरो बनाने के लिए हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी विच इज अगेन दैट मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो अगर आप इस लूप को ऑपोजिट फर्स्ट हैंड में ऑब्जर्व करें और सेकंड में, तो ये सेम बिहेवियर है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन हमारे पास करंट की क्या थी, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव थी तो यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो गया, बट ओवरऑल हमारे पास जो है वो बिहेवियर सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स और 3 से लेके 0 तक इसको लाने के लिए भी हमें एमएमएफ अप्लाई करना पड़ा, एफसी विच इज द कोहेसिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस तरह से 5 से लेके इस पॉइंट तक 0 पॉइंट तक लाने के लिए भी हमें अगेन यहाँ पे कोहेसिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है, ताकि वो जो एक दफा डोमेन्स अलाइन हो गई है उनके हम दोबारा से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस क्या आ रहा है, ये लॉस जो है हमारे पास कोहेसिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई अ सर्टेन एक्सटर्नल एनर्जी इन ऑर्डर टू मेक दिस रेजिडुअल फ्लक्स टू जीरो। This is called the first hysteresis loss, first loss of the magnetic field, and this losses are called as the hysteresis loss। ठीक है, और ये जो हमारे पास लूप बन रही है इसको हम BH कर्व भी कहते हैं, BH लूप भी कहते हैं, और उसको हम hysteresis लूप भी कहते हैं। hysteresis आपने हिस्टेरिया का नाम सुना होगा, हिस्टेरिया बीमारी है जिसमें मरीज को जो है ना वो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पागलपन कैसे है कि ये लूप जो है वो सर्टेन हिस्टेरेसिस को जो है वो फॉलो
दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टैरिसीस लॉसेस। अब हम यहाँ पे देखें, इसमें जरा हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि जीरो से लेके, अब देखिए हमने 0 पॉइंट से करंट को स्टार्ट किया, तो कॉइल जो है वो हमारे पास मैग्नेटाइज होगी और ये सैचुरेशन पे आ गई है, ठीक है। So the material follows a non-linear magnetization curve when magnetized from a zero field value। जब हम उसको मैग्नेटाइज करें जीरो से, तो एक नॉन लीनियर पाथ फॉलो करिए, मींस पहले इसमें जो है वो लीनियरली इंक्रीज आ रहा है, फिर यहाँ पे नी पॉइंट आ गया, नी पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ गया, कोर जो है वो सेचुरेट हो गई है। कोर सेचुरेट होने का मतलब क्या है कि हमारे पास डोमेन्स क्या हो गई है, इन सर्टेन डायरेक्शन जो है वो अलाइन, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि जब हम अप्लाई करंट को, अप्लाई फोर्स को हम जीरो कर रहे हैं, तो इसको भी जीरो होना चाहिए, बट इट रिटेन्स अ certain degree of magnetization which is called as the residual flux। यहाँ पे वैसे ये भी कहते हैं this is called as the magnetic memory, या किसी भी मटेरियल की अपनी कोई ना कोई मेमोरी या कोई फ्लक्स उसने क्या किया हुआ, रिटेन रखा हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस फ्लक्स को जीरो बनाने के लिए, मतलब डोमेन्स क्योंकि अलाइंड हो गए, इनको रीओरिएंट करने के लिए वी हैव टू ड्राइव अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच शुड बी रिवर्स्ड एंड इट शुड बी इंक्रीज टू अ लार्ज वैल्यू, ताकि हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए, दोबारा जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई, ठीक है। जब हमने ये अप्लाई किया विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाई फील्ड, तो हमारे पास क्या हो गया, फ्लक्स अगेन जीरो हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है अगेन वो पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The hysteresis group shows the history dependent nature of the magnetization of a ferromagnetic material। Once the material has been driven to saturation, ठीक है, एक दफा मटेरियल सैचुरेट हो गया, the magnetization field can then be dropped to zero and the material will remain most of its magnetization, ठीक है। कि इसके बाद जो है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको हम जीरो भी कर देंगे, तो ये कुछ ना कुछ फ्लक्स जो अपना रिटेन रखेगी। इट मींस दैट इट हैज अ सर्टेन हिस्ट्री। So let me check. So this was all about hysteresis losses and the hysteresis loop. So what should be the effect of magnetic field on its surrounding? अब हम ये कह रहे हैं कि एक दफा हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करा लिया by applying the current across the core of the coil, तो सॉरी across the coil of a core, तो हमारे पास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सराउंडिंग्स पे थ्री मेजर इफेक्ट डाल रही है। एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मर एक्शन है, if that magnetic field that is produced by the application of the current, if this would be time changing, means अगर ये हमारे पास चेंज हो रही है with the passage of time, we have d phi by dt, मतलब rate of change of flux, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी या वोल्टेज इंड्यूस होगी, which is called as a transformer action, ठीक है। डोंट वरी, ये हम अभी आगे बहुत पढ़ेंगे इन चीजों को, बट अभी सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को पढ़ा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास सराउंडिंग्स में इफेक्ट आ रहा है, उसको हम जो है वो डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मोटर एक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस फोर्स ऑन अ वायर इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गई है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वुड हैव अ फोर्स इंड्यूस्ड इन इट, मैकेनिकल फोर्स, व्हिच इज द मोटर एक्शन। and whenever we have a conductor which would be moving in a magnetic field, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी या वोल्टेज। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। फैराडेज लॉ हमारे पास ये कहता है, if a flux passes through a turn of a coil of a wire, a voltage will be induced in the wire, ठीक है। अगर किसी कॉइल में से अगर फ्लक्स पास हो रहा है, तो उस फ्लक्स के अंदर हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, and that induced voltage will be directly proportional to rate of change of flux। मतलब हमारे पास जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा टाइम के साथ साथ, उतना हमारे पास जो है वो EMF इंड्यूस होगा। सो मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड एज E induced, which is the voltage induced, is equals to d phi by dt, और माइनस साइन इसमें हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि the induced voltage opposes the change that causes it, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। EMF इंड्यूस की डायरेक्शन हमेशा फ्लक्स के ऑपोजिट होगी। अगर हमारे पास n कॉइल्स हैं, तो हमारे पास इसके साथ n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज फैराडेज लॉ। द EMF इंड्यूस्ड would be directly proportional to rate of change of flux for the n turns of coil, and the minus sign indicates that it always opposes the cause which produces it। मतलब जिस cause की वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, cause क्या हमारे पास, टाइम चेंजिंग फ्लक्स,
फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ईएमएफ इंड्यूस की जो डायरेक्शन है वो चेंजिंग फ्लक्स के अपोजिट होगी। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास फ्लक्स लीनियर होगा, टाइम चेंजिंग नहीं होगा, कांस्टेंट फ्लक्स होगा, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज फॉर द चेंजिंग फ्लक्स। इसी वजह से ट्रांसफार्मर में आपने देखोगा हमेशा हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो एसी फ्लक्स, एसी करंट की होती है, क्योंकि हमारे पास करंट अल्टरनेटिंग होगा, एसी होगा, तभी हमारे पास फ्लक्स भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा। मींस टाइम चेंजिंग का जस्ट ये मतलब है कि वो अल्टरनेटिंग है। ठीक है, या जिस भी तरह से कि वो डायरेक्शन किसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे पास ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। अब ये जो माइनस साइन है ये एक्चुअल में लेंजेस लॉ जो है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। अब लेंजेस लॉ एक्चुअल में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज built up in a coil is such that if the coil ends were short circuited, it would produce a current that would cause a flux opposing the original change. तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द अपोजिंग फ्लक्स। ठीक हो गया। अब इसमें एक कॉइल है, कॉइल को हमने क्या किया, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई है। सो द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज बिल्ड अप इन अ कॉइल। अब जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रही है वो ये कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा उस फ्लक्स के क्या होगी, अपोजिट होगी। सो ये हमारे पास कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल की हमारे पास हमने इसके क्रॉस किया, करंट अप्लाई किया, करंट अप्लाई करने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास अगर ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और इस ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन जो है वो फ्लक्स के क्या होगी, अपोजिट होगी। सिंपल ये बात है। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास फ्लक्स मींस नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक हो गया। सिंपल ये है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है। अच्छा, फ्लक्स लिंकेज अब क्या होता है। फ्लक्स लिंकेज ये है कि assumption हमारे पास ये है, the same flux is present in each turn of the coil, which is practically not true. For example, अगर हमारे पास n टर्न्स हैं तो हम ये assume करते हैं कि हर फ्लक्स हर टर्न के अंदर जो है वो हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रेजेंट होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। So the EMF that would be induced is directly proportional to rate of change of flux, but this flux, if it has n number of turns, so it is dependent on each individual टर्न। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ith टर्न है तो इसके क्रॉस जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज है वो यहाँ से रिप्रेजेंट होगा। सो टोटल हमारे पास n टर्न्स है, तो यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा वो हमारे पास, हमने सिंपल क्या करना है, समेशन का साइन यूज करके कि हमारे पास टर्न्स आए फ्रॉम 1 to n, हमने इसी को जो है वो सॉल्व करना है। तो ये जो हमारे पास सिग्मा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n फ्लक्स फाई ऑफ आई आ रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है ईच टर्न का फ्लक्स। तो जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स विच इज कॉल्ड एज द लैम्डा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और ये जो लैम्डा है ये एक्चुअल में हमारे पास जो है वो फ्लक्स लिंकेज को शो कर रहा है कि हमारे पास कितना फ्लक्स जो है हर टर्न का अपना फ्लक्स होगा, और वो कैसे हमारे पास मिलकर टोटल फ्लक्स जो है वो बना रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल 1.6 है, ये आपने सोल्व करनी है। ठीक है, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको देख लेंगे। ये सिंपल हमारे पास ये कर रहा है कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बिकॉज और ये आपने हमेशा याद रखना है कि फ्लक्स की हमेशा क्या होगी, अपोजिट। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एडी करंट्स। एडी करंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि रेजिडुअल फ्लक्स या रेजिडुअल लॉस होता है हमारे पास, हिस्टैरिसीस लॉस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास फ्लक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट होता है, हर टर्न के क्रॉस जरूरी नहीं है फ्लक्स सेम हो। अब जो थर्ड चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास एडी करंट्स है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नाउ वी नो दैट कि व्हेनेवर वी हैव अ टाइम चेंजिंग फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो हमारे पास क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी इन दैट कॉइल ऑफ वायर जिसमें से फ्लक्स जो है वो पास हो, ये फैराडेज लॉ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्योंकि हमें कोर को ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस करेगी वो भी कोर के अंदर ही होगी। अब क्योंकि कोर यूजुअली हम लेते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, जो सारे के सारे हमारे पास क्या है, रेजिस्टिव मटेरियल्स, मींस दे हैव अ सर्टेन रेजिस्टेंस।
अब इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगी कि some of the energy would be lost, the energy would be dissipated, that there would be a certain energy loss. This energy loss is due to the flow of eddy currents. ठीक है, हम इनको एडी लॉसेस भी बोलते हैं। एडी लॉसेस का मतलब ये है कि जब हम फ्लक्स को फ्लो करा रहे हैं इन अ कॉइल तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है इसकी वजह से हमारे पास कोर के अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट होगा, वो तो हमें नजर आ, वो इंड्यूस करंट हमारे पास। अब वो जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो हमारे पास एक सर्टेन लॉस, दिस करंट इज अ लॉस, करंट हीट लॉस, हीट है ना, हीट अप जब कोई चीज होगी तो वो लॉस प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास वहां पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से हमारे पास करंट इंड्यूस्ड होगा, उस करंट इंड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो वो हीट क्या हो रही है, डेसिपेट हो रही है, एंड दैट लॉसेस आर कॉल्ड एज द एडी लॉसेस, या दे आर ड्यू टू द फ्लो ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, so the energy losses due to eddy current is proportional to the size of the path they flow। मतलब एनर्जी लॉस या एडी लॉसेस हमारे पास जिस कोर का मतलब साइज जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा हमारे पास एनर्जी लॉसेस हो जाएंगे, ज्यादा होंगे क्योंकि करंट हमारे पास इन फॉर्म ऑफ एडीज जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। एडीज को अगर हम देखें तो ये भंवर की तरह के होते हैं, मतलब गोल गोल जो हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर। अब एडी लॉसेस जब भी हमारे पास फ्लक्स लिंकेज होगा, सॉरी फ्लक्स चेंजिंग होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो हीट लॉस होगा। हीट लॉस का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एडी लॉसेस होंगे। अब इन एडी लॉसेस को हम खत्म तो नहीं कर सकते 100%, बट अब इनका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम फेरोमैग्नेटिक इंस्टेड के हम सॉलिड कोर यूज करें, हम उसी फेरोमैग्नेटिक कोर को क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। ठीक है, हम उसकी जो है वो पाथ को जो है वो हम ब्रेक कर देते हैं इनटू सर्टेन स्ट्रिप्स। हम इंस्टेड के हम सॉलिड कोर ले हम थिन स्ट्रिप्स यूज करते हैं। हम उन स्ट्रिप्स के दरमियान भी हम क्या करते हैं, इंसुलेशन यूज करते हैं। इंसुलेशन से क्या होगा, हमारे पास एडी करंट को जो फ्लो का पाथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन मिल जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास कम से कम जो है वो एडी लॉसेस जनरेट होंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेमिनेशन, दैट वी आर गोइंग टू लेमिनेट द कोर। लेमिनेशन ऑफ द कोर का मतलब ये है कि हम कोर को इंस्टेड के हम सॉलिड कोर ले, हम क्या कर रहे हैं, थिन स्ट्रिप्स लेके उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और हर दो स्ट्रिप्स के दरमियान में हमारे पास क्या होती है, इंसुलेशन होती है। ये है कि जब हमारे पास ये सॉलिड कोर है जिसमें लेमिनेशन नहीं है तो उसमें एडी करंट को फ्लो करने के लिए फुल पाथ नहीं है। अगर हम इसी कोर को लेमिनेट कर दें, मतलब उसको थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें, तो इनका पाथ क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा, जितना करंट फ्लो करेंगे कम पाथ मिलेगा, उतना एनर्जी लॉसेस हमारे पास आएंगे, कम होंगे। ये हमारे पास लेमिनेशन है जी। ये पूरी कोर के बजाय हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड शीट्स यूज करें, हर दो शीट्स के दरमियान में हमारे पास इंसुलेशन है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो कि लेमिनेटेड है, ये हमारे पास जो वो लेमिनेटेड शीट्स है। ठीक है, पूरी कोर के बजाय हम थिन थिन स्ट्रिप्स ले रहे हैं और हर दो स्ट्रिप्स के दरमियान में हम इंसुलेशन। आई होप सो इट इज एंड फॉर टुडे। यहाँ से आगे फिगर नंबर पेज नंबर 20 से हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। ठीक हो गया, आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जो प्रॉब्लम है आपको वो आपने मुझसे जो है वो ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो यू एंजॉयड इट। अपना ख्याल